बेहतरीन। एक बार अटेंडेंस लगा देंगे, मार्क योर अटेंडेंस बेटा, एक बार फटाफट से अटेंडेंस लगा देंगे। देखें कौन कौन नेगी सोल्जर लाइव है, देखते हैं कितने कितने लोग लाइव हैं, कहां कहां से लाइव हैं। मुझे काफी लोगों के नाम और स्टेट वगैरह तो याद हो गया है। यस, पिंकू इज प्रेजेंट, स्वप्निल इज प्रेजेंट, इंद्रजीत इज प्रेजेंट, विश्वजीत इज प्रेजेंट, विशेष इज प्रेजेंट, गौरांग, स्वप्निल, आदर्श, अंबेडकर, नवनीत, प्रांजल, ओ माय गॉड, अमित, अलाउद्दीन, यस, काजल इज प्रेजेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको मजा आ जाएगा। मतलब मेरे को जहां तक याद है 15 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं नोजल और डिफ्यूजर पर, और मतलब लास्ट में आते आते तो बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ रे बाबा। चलो इस ये तो चंपू क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में एक दो चंपू क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद बढ़िया वाले क्वेश्चंस करते हैं। The first law of thermodynamics takes the form W is equal to minus delta H when applied to a closed system undergoing a reversible adiabatic process, an open system undergoing an adiabatic process with negligible changes in kinetic and potential energies, a closed system undergoing a reversible constant volume process, a closed system undergoing a reversible constant pressure process। अरे चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, फटाफट से बताओ, 30 सेकेंड्स। ओहो हो, छुटकू करते हैं इसको। ये क्या हो गया रे बाबा? हाँ, आ जाओ रे बाबा। चलो 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 फटाफट से आंसर करेंगे रे बाबा। Come on everyone, come on everyone, what is the answer? अरे very easy है रे बाबा। What is your steady flow energy equation? What is your steady flow energy equation? According to what? According to what? According to SFEE. According to SFEE, what I'm having? What I'm having? Q dot is equal to what? W dot CV plus what? Delta KE dot plus what? Delta PE dot plus what? Delta S dot रे बाबा। So my friends, अगर ये Q डॉट हुआ 0 हो जाए, अगर ये डेल्टा के डॉट हुआ 0 हो जाए, इफ डेल्टा P डॉट इज 0, देन व्हाट आर वी गेटिंग रे बाबा? W dot CV plus delta H dot is equal to शून्य। So can I say I'm getting a W dot CV is equal to minus delta H डॉट। यही है जिसको अपन लोग ढूंढ रहे हैं। So what is the answer रे बाबा? What is the answer? Answer is B Bombay. An open system undergoing an adiabatic process means flow with negligible changes in kinetic and potential energies. I hope each and everyone is clear till here. B Bombay, B Bombay, B Bombay है रे बाबा। Let us go to the next question. Let us go to the next question. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। A pump is given. A pump handling a liquid raises its pressure from 1 bar to 30 bar. PI is given 1 bar, PO is given 30 bar. Take the density of the liquid as 990 kg per meter cube. The isentropic specific work done by the pump in kilojoule per kg is, क्या आएगा रे बाबा इसका आंसर? फटाफट से बता देंगे। I am putting the poll. फटाफट से बताएंगे। I am giving you only 50 seconds. I am giving you only 50 seconds because आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। You are already aware of this. You are already aware of this. पंप का इनलेट प्रेशर दिया है रे बाबा। पंप का इनलेट प्रेशर दिया है रे बाबा। इनलेट प्रेशर is given how much? 1 bar. Outlet pressure is given how much? 30 bar रे बाबा। Density of the liquid is given how much? 990 kg per meter cube, है ना? आपसे क्या पूछा है? The isentropic specific work done by the pump in kilojoule per kg is, देखो बेटा स्पेसिफिक वर्क ऑफ पंप मैंने आपको क्या बताया था, जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड करेगी, माइनस V PO माइनस PI, that's it, that's it, that's it. So specific work of pump will be what? Minus V is how much? 1 by rho. Specific volume will be 1 by density, PO minus PI. So WP is equal to what? Minus 1 by 990
PO is what? 30 minus 1, I am converting into kilopascal, so I am taking 10 to power 2 outside. इसको सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आ रहा है लगभग, माइनस में कितना आ रहा है? कैन आई से 2.93 किलो जूल? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर. अच्छा, क्वेश्चन में ना देखो, क्वेश्चन में एक हल्का सा एरर है, क्वेश्चन में एक हल्का सा एरर है ना. देखो यहां पर बाय द पंप नहीं होना चाहिए ना, इट शुड नॉट बी बाय द पंप, इट शुड नॉट बी बाय द पंप. ये क्या होना चाहिए? देखो अगर आप देखेंगे ये 2011 मैकेनिकल में आया था. दिस क्वेश्चन केम इन 2011 मैकेनिकल. व्हाट शुड वी हैव, व्हाट शैल वी हैव इंस्टेड ऑफ बाय? इट शुड बी ऑन ना, वर्क डन ऑन द पंप. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है रे बाबा, कौन सी बड़ी बात है. यस 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 यस, चलो क्लियर हो गया. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन. आई होप ईच एंड एवरीवन इज. अरे छा गए गौरव, वाह वाह वाह, सो मेनी स्टूडेंट्स आर लाइव एंड दे आर गिविंग द करेक्ट आंसर. लेट अस गो, लेट अस गो, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो 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 रे बाबा, चलो रे बाबा, चलो रे बाबा, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Steam at an initial enthalpy of 100 kilojoule per kg and inlet velocity of 100 meter per second enters an insulated horizontal champo insulated well insulated horizontal nozzle. अरे गर्लफ्रेंड इक्वेशन लगेगी रे बाबा चंपो. I have told you the girlfriend equation. It leaves the nozzle at 200 meter per second. The exit enthalpy in kilojoule per kg is what a question, what a question, what a question. 50 seconds है रे बाबा, you are having only 50 seconds. 50 सेकंड में फटाफट से आंसर करो रे बाबा. Come on everyone, come on everyone, come on everyone. HI is given, CI is given, CO is given and he is asking what is HO. अरे ये तो बहुत ही चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. चलो 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 करेंगे रे बाबा, नेगी सोल्जर्स करेंगे रे बाबा, फटाफटी ताड़ा ताड़े रे बाबा, फटाफट 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 करे जाओ करे जाओ करे जाओ. HI is how much? 100 किलोजूल पर केजी. व्हाट अ ब्यूटी. CI is how much? CI is how much? 100 मीटर पर सेकेंड. राइट. CO is how much रे बाबा? CO is how much? 200 मीटर पर सेकेंड. ब्यूटिफुल. ही इज आस्किंग HO. अब बेटा इसमें तो कोई डाउट नहीं है. इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल. दे हैव गिवन वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल. तो बेटा लग जाएगी गर्लफ्रेंड इक्वेशन. यस, यहां लगा देंगे गर्लफ्रेंड इक्वेशन रे बाबा. गर्लफ्रेंड इक्वेशन क्या बोल रही है? डेल्टा स्मॉल के ई प्लस डेल्टा स्मॉल एच इज इक्वल टू शून्य. दैट मीन्स हाफ इन ब्रैकेट CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस HO माइनस HI इज इक्वल टू शून्य. अब बेटा ये अब आपके ऊपर है, यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती करने वाले हो. You will be committing only one mistake over here. और वो mistake क्या होने वाली है? What will be that mistake? You will not balance the units. But half CO square minus CI square will be in joule per kg, whereas if you see HI is given in kilojoule per kg. So you have to balance the unit, then only you will be getting the correct answer. Now it's up to you whether you want to change the entire equation in joule per kg or you want to change the entire equation in kilojoule per kg. Anyways, he is asking the exit enthalpy in kilojoule per kg. So let me write the entire equation in kilojoule per kg. So if I want to write the entire equation in kilojoule per kg, I need to convert this joule per kg term into kilojoule per kg. So I have to divide this by 1000. अरे चंपो, this is already in kilojoule per kg रे बाबा. This is already in kilojoule per kg रे बाबा. This half CO square minus CI. अरे ये बाहर कैसे निकल गया रे बाबा ब्रैकेट के? ये बाहर कैसे निकल गया रे बाबा चंपू ब्रैकेट के? हाँ. So my friend, this is in joule per kg. If I want to convert this half CO square minus CI square in kilojoule per kg, I have to divide by 1000. तो क्या आएगा? 1 by 2000 CO 200 square minus CI 100 square plus HO तो निकालना है, minus what? HI
इज इक्वल टू शून्य। बेटा एनीवन इन द क्लास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीओ यू पीपल आर गेटिंग? फटाफट से मुझे कंफर्म करो सीओ कितना रहा है, सॉरी एचओ कितना रहा है, एचओ कितना रहा है 85 किलो जूल पर केजी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एचओ इज 85 किलो जूल पर केजी। मान गए गौरव, मान गए गुरु, एक्सीलेंट है रे बाबा, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल। कर लिया ये क्वेश्चन सबने? आंसर इज 85। इन द ऑफिशियल आंसर की द रेंज वाज 84 टू 86। इन द ऑफिशियल आंसर की द रेंज वाज 84 टू 86। बन गया ये वाला क्वेश्चन, गेट 2016 मैकेनिकल। अरे इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा। नेगी सोल्जर्स नहीं फंसेंगे, सबको पता है क्या चालाकी है, जूल पर केजी किलो जूल पर केजी की चालाकी है रे बाबा। बन गया सबसे, वेरी गुड सोमेश, आशी, यस, स्वप्निल, गौरांग, वेरी गुड वेरी गुड। सेल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाइक करो रे बाबा, लाइक करो रे बाबा। गेट 2018 एक्सी, चलो चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रे बाबा। क्या है? सुपर हीटेड स्टीम एट 2 बार and 300 degree Celsius with an enthalpy of 3072.1 kilojoule per kg enters a horizontal adiabatic nozzle. Horizontal or champu re baba, champu re baba, champo. Horizontal adiabatic nozzle means what? A well insulated horizontal nozzle. You can apply the Gulf equation with the negligible velocity. Negligible velocity means C gone, C is gone, C is zero, almost zero, and leaves at 0.2 bar as saturated vapor with an enthalpy of 2609.9 kilojoule per kg. HO दे दिया रे बाबा, small HO दे दिया रे बाबा। Assuming steady flow and neglecting the potential energy changes, the exit velocity of the steam up to 1 decimal places. ये तो चंपो क्वेश्चन है रे बाबा, 50 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा, 50 सेकंड है, फटाफट से कर डालो रे बाबा। You people are having only 50 seconds for solving this question. फटाफट से, अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है रे बाबा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुछ सरप्लस डेटा दिया, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो डेटा चाहिए बस वो रखो ना रे बाबा। टीआई गिवन है 2 बार, क्या करोगे इसका? कोई मतलब नहीं है। टीआई गिवन है 300 डिग्री सेल्सियस, क्या करोगे इसका? कोई मतलब नहीं है। मतलब है इसका जनाब, यू नीड दिस स्मॉल एच आई इज हाउ मच? 3072.1 किलोजूल पर केजी, right? And they have given CI is 0. Already they have they told in the question negligible velocity, right? Leaves at 0.2 bar. ठीक है, PO दिया है रे बाबा, PO दिया है 0.2 बार, क्या करेंगे इसका? कोई मतलब नहीं है। 0.2 बार एज अ सैचुरेटेड वेपर विद एन, हाँ इसका मतलब है स्मॉल HO इज हाउ मच? 2609.9 किलोजूल per kg. Assuming steady flow and neglecting the potential energy changes, the exit velocity. CO पूछ लिया बेटा, ये तो गर्लफ्रेंड इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। अरे चंपू, वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल है रे बाबा। आई एम हैविंग वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल। इफ आई एम हैविंग वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल, चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपो, कैन आई से हाफ? अरे डायरेक्टली लिख रहा हूं रे बाबा, हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर इज, और प्लस लिख लो इधर, प्लस व्हाट? स्मॉल HO माइनस स्मॉल HI इज इक्वल टू शून्य। बेटा ऑलरेडी CI टेंड्स टू शून्य। इफ CI टेंड्स टू शून्य, कैन आई से आई एम गेटिंग CO स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 2 इन ब्रैकेट HI माइनस HO। अब तो कुछ बचा ही नहीं रे बाबा, अब तो कुछ, हाँ गलती बस ये मत करना कि सर मैंने किलो जूल पर केजी, वो गलती मत कर देना रे बाबा, जूल पर केजी में रख लो, बिकॉज यू वांट CO, राइट? समझ रहे हो ना बेटा क्या बोल रहा हूं? देखो देखो ध्यान से, ये गलती मत करना। दिस इज इन जूल पर केजी, यू वांट CO, दिस इज इन किलो जूल पर केजी, तो इसको जूल पर केजी में कन्वर्ट कर लेना रे बाबा, इसको आप जूल पर केजी में कन्वर्ट कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। 2 इन ब्रैकेट HI इज हाउ मच?
3072.1 माइनस HO इज हाउ मच 2609.9 इंटू 1000। बेटा यहां से CO स्क्वायर मिलेगा, तो CO की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोग बताओ। ये तो CO स्क्वायर निकल गया, CO की वैल्यू कितनी आ रही है देखें जरा 961.45। जियो रे लाला, जियो रे लाला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 961.4। आज तो नेगी सोल्जर्स फुल फायर में है रे बाबा, आज तो नेगी सोल्जर्स फुल फायर में है रे बाबा। इसकी रेंज क्या थी 961 टू 962। कितने में पूछा था अप टू 1 डेसिमल। 961.5 रख सकते हैं, और रेंज जो थी ऑफिशियल आंसर की मैं रेंज कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं 961 टू 962। अरे हो जाएगा, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन सबसे, हो गया ये वाला क्वेश्चन सबसे। बोलो रे बाबा, बन रहा है क्वेश्चन, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोनाली वेरी गुड बेटा, साइन वेरी गुड, पारस वेरी गुड, अखिलेश ओ माय, मेरा दिल खुश हो गया रे बाबा। मतलब ये लाइन से जो 96.4 96.5 दिख रहा, दिल एकदम बाग बाग हो गया रे बाबा। वट्ठा ब्योटे आ जाओ रे बाबा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वट्ठा ब्योटे हो गया रे बाबा, हो गया रे बाबा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। Shall we go for the next question? Shall we go for the next question? Yes, yes, yes. चलो रे बाबा, चलो रे बाबा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने लेगी सोल्जर्स को आज, निपटा देंगे सारे PYQs। Consider the steady flow of air through an insulated nozzle. Insulated nozzle दिया है रे बाबा। The pressure and the temperature at the inlet are, बेटा PI is given 120 kilopascal, TI is given 320 Kelvin respectively. Okay, fine. The outlet pressure is 1 bar. Okay. Okay, PO is given. The inlet velocity is very small, very small, very small, tends to 0, tends to 0, tends to 0. And the air undergoes a reversible adiabatic process given. Reversible adiabatic flow is given. The outlet velocity in meter per second is, my God, reversible flow दिया है, reversible adiabatic flow दिया है। याद आ रहा है, याद आ रहा है। लास्ट क्लास में क्या बताया था, whenever they are giving you perfect gas undergoing isentropic flow, then only you are going to apply which formula, T P power 1 minus gamma upon gamma is equal to constant, then only you will be applying। यहां लगा सकते हैं। चलिए निकालिए, आउटलेट वेलोसिटी निकालनी है। हॉरिजॉन्टल नोजल मानिए, फटाफट से कीजिए बेटा। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए आपके पास 90 सेकंड है। यू आर हैविंग 90 सेकंड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। You are having 90 seconds for solving the question। देखो बेटा ध्यान से करना, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। PI is given 120 kPa किलो पास्कल, TI is given 320 Kelvin रे बाबा, 320 Kelvin रे बाबा। The outlet pressure is 1 bar, PO is given 1 bar। अरे चंपा, what is the meaning of 1 bar रे बाबा? The meaning of 1 bar is 100 kilopascal। The meaning of 1 bar is how much? 100 kilopascal। CI is given शून्य। क्या पूछ रहा है आपसे? CO पूछ रहा है, CO पूछ रहा है। करो बेटा, फटाफट से करेंगे, फटाफट से करेंगे। हॉरिजॉन्टल नोजल मान लो, कुछ नहीं लिखा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब ध्यान से देखना बेटा, if I am having well insulated horizontal nozzle, half CO square minus CI square plus HO minus HI is equal to शून्य। ये आपको पता है ना, डेल्टा स्मॉल के प्लस डेल्टा स्मॉल h will be शून्य। नाउ हाफ CO square minus CI square, since I am having air na, in the question they have given air is behaving as the perfect gas, so I can write Cp TO minus TI, Cp TO minus TI। Cp of air I know। अब इस इक्वेशन में क्या है, केवल एक प्रॉब्लम है, there is only one problem। CO I need to find, CI तो शून्य है रे बाबा, CI तो शून्य है रे बाबा। Cp I know, no problem, 1005 जूल पर केजी पर केल्विन। TO नहीं पता है, ये TO कैसे निकलेगा रे बाबा? हाउ टू फाइंड TO?
फटाफट से बताओ बेटा, ये टीओ कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड दिस टीओ? टीओ नहीं पता, हाउ टू फाइंड दिस टीओ? कैसे निकालोगे टीओ? हाउ टू फाइंड टीओ? अरे चंपा, टी पी पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो 100% टी आई पी आई पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू टीओ पीओ पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। यहां से निकल जाएगा झमाझम टीओ। क्या होगा टीओ? टीओ विल बी इक्वल टू व्हाट? पी आई बाय पीओ होल पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इंटू टी आई। तो टीओ इज इक्वल टू व्हाट? पी आई कितना है रे बाबा? 120। पीओ इज हाउ मच? 100। 1 माइनस 1.4 अपॉन 1.4 इंटू टी आई इज हाउ मच? 320 केल्विन। बेटा टीओ बताओ फटाफट से, टीओ कितना रहा है सॉल्व करके? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीओ यू पीपल आर गेटिंग? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट द आउटलेट? कोई मुझे हेल्प करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट द आउटलेट? एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट द आउटलेट यू आर गेटिंग आफ्टर सॉल्विंग दिस? 120 बाय 100 पावर 1 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 320। बहुत बढ़िया, 303.75। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस बेटा अब कुछ नहीं करना आपको, यहां पर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, हाफ CO square, CO you want to find, make sure the complete equation is in joule per kg. Make sure, look at here, look at here, look at here. You have to make sure this equation is in joule per kg. This part of the equation is in joule per kg and this part of the equation is also in joule per kg. ठीक है, तो क्या करने वाले हैं? CP की वैल्यू ध्यान से रखने वाले हैं। 1005 आई एम टेकिंग इन जूल पर केजी पर केल्विन। 303.75 माइनस 320 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से CO कितना आ गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CO वी पीपल आर गेटिंग? 180.688। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार क्या आ रहा है आंसर? बी बॉम्बे। बन रहे हैं क्वेश्चन, बन रहे हैं क्वेश्चन जनाब। कितने लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चन कर दिए? जरा फटाफट से बताना। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सारे क्वेश्चन बन गए? हेलो बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अरे पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो यार अगर मजा आ रहा है। लेट अस मेक द कंप्लीट चैट बॉक्स रेड 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 रेड, लाल हो जाए रे बाबा चैट बॉक्स। ये हुई ना बात। कमान कमान कमान। अरे ये तो अंधा भी बना देगा रे बाबा, ये तो अंधा भी बना देगा रे बाबा। टीओ, टीओ क्या आ रहा है? टीओ कुछ और आ रहा है क्या? टीओ कुछ और आ रहा है क्या? टीओ सही है? देखो आप लोग जो बता रहे हो मैं वही रख रहा हूं, आप लोग जो भी बोल रहे हो मैं वही रख रहा हूं। जल्दी से बताओ टीओ सही है? टीओ सही है? बहुत बढ़िया। टीओ का बता दो ताकि अगर कोई बाद में देखे तो उसको प्रॉब्लम ना हो। डेटा आप लोग सही है? सही है यार। 337 तो नहीं आ सकता। 337 कैसे आ जाएगा? अरे 337 नहीं आ सकता बेटा। 337 आ रहा है? कितने? देखो जिन लोगों का 337 आ रहा है, जिन लोगों का 337 आ रहा है उन्होंने 337 तो आ ही नहीं सकता। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, जब इनलेट का टेम्परेचर 320 केल्विन है एंड आई एम हैविंग हॉरिजॉन्टल वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल, मैंने कल भी बताया था टीओ तो हमेशा टीआई से कम ही आएगा। टीओ तो हमेशा टीआई से कम ही आएगा, आ ही नहीं सकता। देखो मैं बता रहा हूं जिन लोगों का, मैं समझ गया क्यों आप लोगों का गलत आ रहा है। देखो आप ये गलत फार्मूला लगा रहे हो। कुछ लोग अभी यहां पर क्या कर रहे हैं ना, गामा -1 बाय गामा कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं बेटा फार्मूला आपके टिप्स पे रहना चाहिए। टी पी पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा होता है, ना कि गामा -1 बाय गामा। ये गलती कर रहे हो यहां पर।
कुछ लोग क्या कर रहे हैं, टी पी पावर गामा माइनस 1 बाई गामा लगा रहे हैं, उनकी पावर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गई, उल्टा इफेक्ट आ गया है ना। चलो ठीक है, बता दिया मैंने। चलो यस 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 यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये तो बहुत इजी है, दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन, गलती मत करना यहां पर। द थ्योरेटिकल, द मोमेंट वी आर सेइंग थ्योरेटिकल, तो मतलब एक्चुअल में वो हो पॉसिबल या ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या पूछ रहा है, द थ्योरेटिकल मैक्सिमम वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड ऑफ एयर एक्सपेंडिंग फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 700 केल्विन इज डैश। what can be the maximum velocity, what can be the theoretical maximum possible velocity अगर कोई एयर है, अगर एयर है एक्सपेंड हो रही है रिजर्वायर से 700 केल्विन पे। मैं आपको इसका हिंट देता हूं, देखो देखो, Q डॉट इज इक्वल टू W डॉट CV प्लस डेल्टा के डॉट प्लस डेल्टा पीई डॉट प्लस डेल्टा एस डॉट। यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन काइनेटिक एनर्जी ना, सो लेट अस सपोज आई एम हैविंग वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल, सो फाइनली आई विल बी एंडिंग विद दिस। अरे आई एम इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम पॉसिबल, theoretical maximum possible velocity. So look at here, what I'm going to get, half CO square minus CI square plus delta small h Cp TO minus TI is equal to शून्य. Now look at here, of course I'm having large reservoir, so CI tends to 0. Now listen carefully. In the question he is saying clearly he is interested in theoretical velocity, whether it is practically possible or not, none of our business. So what we are assuming is, अरे चंपो, इसको दोबारा से लिखता हूं। What we are assuming is the outlet temperature of the well insulated horizontal nozzle becomes 0 Kelvin, so that I will be getting the theoretical मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बताओ बेटा कितना आएगा यहां पर, हाफ CO स्क्वायर प्लस CP और माइनस CP TI इज इक्वल टू शून्य, माइनस CP TI इज इक्वल टू शून्य, है ना। सो CO स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2CP TI रूट ओवर 2CP TI, 21005 TI is how much बेटा, 700 Kelvin। बताओ बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CO यू पीपल आर गेटिंग, एक बार बताना CO की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, हाँ 1186.17, यस यस यस, अरे छा गए गरो, 1186 पॉइंट हाउ मच, 17। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह वाह, अरे बेहतरीन। मुझे एक चीज बताना बेटा, मुझे एक चीज बताना, अरे 0 केल्विन इज इम्पॉसिबल ना, वी कैन नॉट हैव 0 केल्विन। यहां पर आपने 0 केल्विन क्यों रखा है, व्हाई आर यू पुटिंग 0 केल्विन हियर, फटाफट से बोल दो बेटा, why are you putting 0 Kelvin here? 0 Kelvin is impossible, but why are you putting 0 Kelvin here? यहां पर आपने 0 Kelvin क्यों रखा? What is the reason? क्या कारण है? What is the reason? What is the reason? फटाफट से बताओ। What is the reason? Because he is interested in theoretical maximum velocity. He wants the theoretical maximum velocity, कि theoretically कितना मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है। तो जब theoretically आपको मैक्सिमम चाहिए तो ये आपको 0 तक जाना होगा। तो आंसर है बेटा इसका 1186.17
1186.17. In the official answer key, the range was 1185 to 1186.5. This was the range. Chalo, let us go to the next question. Oh my God, GATE 2011 PI का क्वेश्चन है रे बाबा. क्या है? In a steady state and adiabatic flow of air through a horizontal nozzle. बट ऑलरेडी स्टडी फ्लो दे दिया, एडियाबैटिक फ्लो दे दिया, हॉरिजॉन्टल नोजल दे दिया. द प्रेशर एंड टेम्परेचर ड्रॉप from 105 kilopascal and 300 Kelvin to 100 kilopascal and 296 Kelvin. But look at here, PI is given, TI is given, PO is given, TO is given respectively. The air is considered to be a perfect gas. We know the specific heat at constant pressure Cp is 1005 joule per kg per Kelvin. Density is given 1.15 kilo kg per meter cube, kilogram per meter cube, and the ratio of specific heats gamma is given 1.4 for air. If the inlet kinetic energy is negligible, Ci is given 0, then the velocity of air at the nozzle exit is. जल्दी से बताओ कैसे करोगे इसको. How are you going to solve? अरे बहुत इजी है, वेरी 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 इजी. इस पे तो टाइमर लगाऊंगा. I will put the timer. Let me see how many of you will be giving the right answer. चलिए 90 seconds, उससे ज्यादा नहीं. I am giving you just 90 seconds. फटाफट से सॉल्व कर डालो रे बाबा. बहुत बढ़िया विश्वजीत, छा गए. प्रांजल वेरी गुड. नवनीत, अरे यार इन लोगों ने तो तबाही मचा दी है. नेविल वेरी गुड बेटा. ये कुछ नेगी सोल्जर्स तो पूरा तबाही मचा दिए रे बाबा. बहुत बढ़िया, फोड़ दिया रे बाबा. वेरी गुड. हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस CP TO माइनस TI is equal to शून्य. But already he is saying neglect inlet kinetic energy, so CI tends to 0. Half CO square plus CP TO माइनस TI is equal to शून्य. अब तो इसको सॉल्व कर लो बस. कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में. हाफ CO square plus CP is how much 1 point. अच्छा देखो ध्यान से, जूल पर केजी पर केल्विन में ले लेना ध्यान से. TO is how much 296 Kelvin. TI is how much 300 Kelvin is equal to शून्य. तो कितना आ रहा है CO? एग्जैक्ट वैल्यू बताओ. व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ CO वी पीपल आर गेटिंग? बहुत इजी है रे बाबा. 89.66 मीटर पर सेकेंड. खत्म है रे बाबा. Are you clear till here? ब्यूटीफुल. बन रहे हैं क्वेश्चन झमाझम तरीके से. आंसर इज बी बॉम्बे. आर यू गेटिंग? अखिलेश छा गए गुरु. बहुत बढ़िया. बाकी का डेटा क्यों दिया है? बाकी का डेटा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि मेरा चंपू थोड़ा सा सोचने लग जाए. और पीआई भी दिया है, पीओ भी दिया है, कुछ तो करूंगा इसका. और वो सोचते चंपू का हो जाएगा टाइम वेस्ट. चंपू रे बाबा. सोचने का नहीं है, एग्जाम में सॉल्व करने का है. नेगी सर ने फॉर्मूला बताया है. हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस CP TO माइनस TI इज इक्वल टू शून्य. जो डेटा चाहिए वो डालना रे बाबा, बाकी को छोड़ना रे बाबा. सब पकड़ेगा तो चला जाएगा रे बाबा एग्जाम में. हाँ, कंफ्यूज नहीं होने का रे बाबा. हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ माय गॉड, ये बढ़िया क्वेश्चन है रे बाबा. आज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए. टुडे आई एम हैविंग सो मेनी. अभी मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन लगभग और बचे हैं.
तो मजा आ जाएगा आज तो। एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स इन एन एडियाबैटिक फ्रिक्शनलेस वर्ड यूज हो गया है। नाउ यू आर फ्री टू यूज द फार्मूला टी पी पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। From the inlet conditions of 31 bar, 800 Kelvin, PI/TI is given to the ambient pressure of 1 bar, PO is given at the outlet. The specific heat CP for the gas is 1 kilojoule per kg per Kelvin, and the specific heat ratio gamma is 1.4. Neglecting inlet kinetic energy, the velocity of the gas एट द नोजल एग्जिट इज। बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को फोड़ देंगे, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं। फटाफट से करो रे बाबा, फटाफटे, चलो 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 फटाफट से करेंगे। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू रॉक दिस क्वेश्चन। बेटा याद रखना, इन द क्वेश्चन ऑलरेडी ही हैज यूज्ड, अरे ऑलरेडी क्वेश्चन में टर्म यूज कर दी है रे बाबा, फ्रिक्शनलेस। ऑलरेडी इन द क्वेश्चन ही इज सेइंग फ्रिक्शनलेस रे बाबा, फ्रिक्शनलेस रे बाबा। मैंने बोला था आपको, व्हेन आई वाज टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू इफ दे आर यूजिंग द वर्ड आइडियल फ्रिक्शनलेस, ऐसा कुछ यूज हो जाए तो आप यूज कर सकते हो टी पी पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन में, ही इज आस्किंग सीओ। मुझे पता है एक ही तो फार्मूला है जहां से सीओ निकलेगा, हाफ सीओ स्क्वायर माइनस सीआई स्क्वायर प्लस सीपी टीओ माइनस टीआई इज इक्वल टू शून्य। बस इतना ही है। मेक श्योर यू आर पुटिंग सीपी इन जूल पर केजी पर केल्विन, सो दैट एंटायर इक्वेशन विल बी इन जूल पर केजी, है ना। अब यहां देखना सीआई तो है शून्य, सीपी पता है 1000 जूल पर केजी पर केल्विन, टीआई भी पता है 800 केल्विन, ये टीओ नहीं पता रे बाबा, ये टीओ कैसे निकलेगा रे बाबा। ओहो हो, छा गए गारो, हाउ टू फाइंड दिस टीओ, ये टीओ कैसे निकलेगा रे बाबा। इसका है ना एक फार्मूला, टी पी पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाई आई एम यूजिंग दिस फार्मूला, इसको लगाने की कंडीशन क्या है, इसको लगाने की कंडीशन है I must have some perfect gas, जो कि क्वेश्चन में दी है, Cp is given constant ना, I must have some perfect gas undergoing isentropic flow. Yes, clearly they have given frictionless means internally reversible. So I am having internally reversible adiabatic flow, isentropic flow. तो मैं ये फार्मूला लगा सकता हूं, यहां से मैं निकालने वाला हूं TO. So what will be TO? Look at here, Ti Pi power 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू टीओ पीओ पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। तो यहां से निकाल लो टीओ, टीओ क्या होगा, पीआई बाय पीओ होल पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इंटू टीआई। बेटा टीओ कितना आ रहा है एक बार ये बता दो, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ टीओ। फटाफट से टीओ की वैल्यू में हेल्प कर दो, टीओ की वैल्यू में हेल्प कर दो। टीओ कितना आ रहा है, टीओ आ रहा है, झमाझम कॉन्सेप्ट है रे बाबा। टीओ 300 केल्विन आ रहा है, टीओ इज हाउ मच 300 केल्विन, 300 केल्विन है रे बाबा, 300 केल्विन है। क्या ही तो क्वेश्चन है रे बाबा। देखो पीआई इज गिवन 31 बार डिवाइडेड बाय पीओ इज हाउ मच 1 बार, 1 माइनस गामा इज गिवन 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू टीआई इज गिवन हाउ मच 800 केल्विन। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीओ आ रहा है आपका 300 केल्विन, और अब आप इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा सीओ जो कि आ रहा है 1000। बेहतरीन। बट अब तो गलती नहीं हुई किसी की टीओ निकालने में। मुझे एक चीज कंफर्म करो, लास्ट टाइम जब टीओ निकालना था काफी लोगों ने गलती करी थी। आई होप नाउ एवरीवन इज गेटिंग राइट टीओ, सबका टीओ सही आ रहा है। ओके यस ठीक है, 299.9, 299 ओके ठीक है, ये लगभग 299.9 केल्विन आ रहा है। फाइन, वेरी गुड। बेटा याद रखना, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं,
if I'm having a well insulated horizontal nozzle, अगर मेरे पास well insulated horizontal nozzle है and if some perfect gas is passing through, flowing through this well insulated horizontal nozzle, always remember TO will be less than TI. अगर TI 800 केल्विन दिया है क्वेश्चन में, याद रखना कभी भी TO 800 केल्विन से ज्यादा नहीं हो सकता. TO has to be less than TI. एक्चुअल में होता क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है और वेलोसिटी इंक्रीज करती है इफ आई एम हैविंग द सबसोनिक फ्लो ऑफ द परफेक्ट गैस. क्लियर है? अरे ये अगर आपके क्वेश्चन बन गए तो रद्द कर दो ना रे बाबा पूरी चैट बॉक्स, पूरी की पूरी चैट बॉक्स रद्द हो जाए रे बाबा, लाल हो जाए रे बाबा. चलो 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 लाल कर देंगे रे बाबा, फटाफट से फटाफट से, फटाफट फटाफट ताड़ा ताड़ी रे बाबा, ताड़ा ताड़ी रे बाबा, फटाफट फटाफट फटाफट. ये हुई ना बात. चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हुई ना बात. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. गेट 2007 XE. क्या ही तो क्वेश्चन है, क्या ही तो क्वेश्चन है. ध्यान से देखना बेटा. कंसीडर स्टडी फ्लो ऑफ एयर. Cp is equal to 1005 जूल पर केजी पर केल्विन इन एन एडियाबैटिक पैसेज. एडियाबैटिक फ्लो दिया है लेकिन वो पैसेज है. अब मुझे नहीं पता वो नोजल है कि नहीं. अच्छा, एयर एंटर्स द पैसेज एट 100 किलो पास्कल एंड 500 केल्विन. Pi is given, Ti is given at a velocity of 150 meter per second. Ci is given and exits the passage at 510 Kelvin. TO is given. Assume air to be an ideal gas and neglect gravitational effects. The passage is, oh my god. बेटा ध्यान से बताना, डिफ्यूजर और नोजल में कंपैरिजन है. बिना सॉल्व करे, विदाउट सॉल्विंग, any intelligent student of the class can tell me in the question this passage is a nozzle or diffuser. बेटा आपको TI दिया है, आपको TO दिया है. TI की वैल्यू देखो, TO की वैल्यू देखो और सोचो. इट कैन बी नोजल और डिफ्यूजर, इट कैन बी नोजल और डिफ्यूजर. जो भी वैल्यू दी है एक बार उसको देख लो. What is the value of TI given? 500 Kelvin. What is the value of TO given? 5. अरे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है रे बाबा. If I am having, मैंने अभी भी बताया था, if I am having the flow of perfect gas through well insulated horizontal nozzle, 100% temperature is going to decrease. यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जैसे ही मुझे पता चला टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, C and D कैन नॉट बी द आंसर. 100% डिफ्यूजर है, 100% डिफ्यूजर. अब क्या पूछ रहा है? CO पूछ रहा है. तो बेटा CO पूछा तो निकालो, ये तो बहुत इजी है. हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस CP TO माइनस TI इज इक्वल टू 0. मेक श्योर द कंप्लीट इक्वेशन इज इन जूल पर केजी. हाफ CO स्क्वायर मुझे निकालना है. CI इज हाउ मच? CI is 150 meter per second, so 150 square plus CP 1005. TO minus TI. TO is how much? 510 minus TI 500 is equal to 0. बेटा CO की वैल्यू बता दो फटाफट से ताकि आंसर मैच कर सकें. Can you tell me what is the answer? Can you tell me what is the answer? फटाफट से बता दो रे बाबा. अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नेगी सोल्जर्स के लिए. अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस है बाबा, फोड़ देंगे रे बाबा आज तो. जल्दी से बताओ क्या आ रहा है आंसर. CO की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके. क्विकली 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 टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CO यू पीपल आर गेटिंग. फटाफट से बता देंगे रे बाबा. CO इज कमिंग ऑलमोस्ट, कितना आ रहा है? 48.89. ओके, 48.89 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स आंसर इज ए आगरा. आंसर इज ए आगरा. बन गया ये वाला क्वेश्चन. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. वट्ठा ब्योठे एक्सीलेंट है रे बाबा. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दूं, आपके लिए झमाझम सरप्राइज है रे बाबा. आर यू रेडी फॉर द झमाझम सरप्राइज? टुमारो एट 7 PM. Tomorrow at 7 PM I am having one झमाझम surprise for all the students. Maybe YouTube, maybe special class, maybe plus, whatever.
जितने भी नेगी सोल्जर्स हैं सबके लिए कल 7 PM पर एक झमाझम सरप्राइज है रे बाबा। 7 PM हम लोग मिलने वाले हैं लाइव। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2012 मैकेनिकल, ये तो मैकेनिकल का क्वेश्चन है रे बाबा। क्या बोल रहा है? एयर एंटर्स एन एडियाबैटिक नोजल एट 300 किलो पास्कल एंड 500 केल्विन। बेटा Ti is given with a velocity of 10 meter per second. Oh my God, Ci is also given. It leaves the nozzle at 100 kilopascal. Po is given with a velocity of 180 meter per second. Co is given. The inlet area is 80 centimeter square. The specific heat of air Cp is 1008 जूल पर केजी पर केल्विन। द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द एयर इज। इसको सॉल्व करो बेटा, इसको फटाफट से बनाएंगे। बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है? कोई मुझे बता सकता है क्या इसका आंसर नहीं हो सकता? विच ऑप्शंस कैन नॉट बी द आंसर? कैन यू टेल मी? जरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखकर आप बता सकते हो? सीइंग द ऑप्शंस, कैन यू टेल मी विच ऑप्शंस कैन नॉट बी द आंसर? मुझे ये बताओ फटाफट से, मुझे बताना जरा एक बार फटाफट से, ऑप्शन देखकर मुझे बताओ विच ऑप्शंस कैन नॉट बी द आंसर। अरे आई एम हैविंग नोजल ना, नोजल, सो टीओ कैन नॉट बी मोर देन टीआई। व्हाट इज द टीआई? 500 केल्विन। What is the TI? 500 Kelvin. So 100% TO cannot be more than TI. ये स्वाहा। आंसर इज आइदर सी चेन्नई और, अरे 50% डाउट तो यही क्लियर हो गया। ए और बी आंसर हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर टीओ टू बी मोर देन टीआई। सो 500 केल्विन से ज्यादा तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर इज आइदर सी और डी। चलो फटाफट से सॉल्व करो, ये तो बहुत इजी है, कैसे निकालोगे बेटा? कैसे निकालोगे? एग्जिट टेम्परेचर पूछा है। हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस CP TO माइनस TI इज इक्वल टू 0, राइट? हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CO? आउटलेट वेलोसिटी 180 स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस CP 1008। TO I need to find. TI is how much बेटा? TI is how much? 500 Kelvin. चलो इसे सॉल्व करो और बताओ TO की वैल्यू कितनी आ रही है। आफ्टर सॉल्विंग यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TO यू पीपल आर गेटिंग। 484 और 468 आ गया। यस काजल वेरी गुड बेटा, वैभव वेरी गुड, विक्रमजीत वेरी गुड बेटा, गौरांग वेरी गुड, एक्सीलेंट है रे बाबा, काफी लोगों ने आंसर दे दिया। जतिन वेरी गुड बेटा। So many students are giving the answer quickly. बहुत बढ़िया रे बाबा, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मचा दिया आप लोगों ने, ये मचा दिया, इसे बोलते हैं मचा दिया आप लोगों ने। क्या ही तो बात है रे बाबा, बहुत बढ़िया, क्या ही तो बात है। आंसर इज सी चेन्नई, राइट? आंसर इज सी चेन्नई। बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी। अरे मजा आ गया। आसिफ वेरी गुड बेटा, संजय वेरी गुड, कैलकाटा है रे बाबा, मेगा वेरी गुड बेटा, स्वप्निल श्रे एक्सीलेंट, छा गए गौरव। अरे ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, ईमानदार से बताओ चंपू क्वेश्चन है कि नहीं? ऑल आर चंपू क्वेश्चन, ये सब चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, ये सब के सब चंपू क्वेश्चन है रे बाबा नेवी सोल्जर्स के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? द एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल इज। देखो बेटा, दिस इज अ कॉमन डेटा क्वेश्चन। In common data question you are having two questions, right? First question we have solved, we got TO is equal to 484 Kelvin. Now he is asking the exit area of the nozzle. AO मांग रहा है बेटा, याद रखना AO अगर मांग लिया, जब भी आपसे एरिया मांग ले तो कंटिन्यूटी इक्वेशन याद कर लेना। Whenever he is asking you what is the area, recollect the continuity equation. लगाओ continuity equation और बोलो बेटा, apply the continuity equation and tell me what is the answer. Apply the continuity equation and tell me what is the answer. Very good आयुष, बहुत बढ़िया। डेटा दिखा देता हूं एक बार फिर, PI is given 300 किलो पास्कल। PI is given, लिख दूं क्या आप लोगों के लिए डेटा? यहां लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो,
let me write pi is given how much beta, pi is given 300 kilopascal, ti is given 500 kelvin, ci is given 10 meter per second, right, and po is given 100 kilopascal, अरे ये पास्कल कहां चला गया, 100 kilopascal, और क्या दिया है, CO is given 180 meter per second, 180 meter per second. What else is given? AI is given 80 centimeter square. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. CP is given 1008 joule per kg per Kelvin, and just now I have calculated TO which is coming 484 Kelvin. बस AO पूछ रहा है बेटा. अरे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो ना रे बाबा. What is continuity equation? Your m dot I, mass flow rate at the inlet, is equal to mass flow rate at the outlet, is equal to m dot only na. So what is the mass flow rate at inlet? Rho I, AI, Ci. What is the mass flow rate at outlet? Rho O, AO, CO. What I need AO, area at the outlet of the nozzle. So AO will be equal to what? Rho I, AI, Ci divided by रो ओ सी ओ. बेटा ये रो आई कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड रो आई? पी आई डिवाइडेड बाय आर टी. आर चंपो, पी इज इक्वल टू रो आर टी ना रे बाबा चंपो. सो रो आई विल बी व्हाट? पी आई डिवाइडेड बाय आर टी आई. ए आई सी आई डिवाइडेड बाय रो ओ. व्हाट विल बी रो ओ? पी ओ डिवाइडेड बाय आर टी ओ सी ओ. समथिंग इज गेटिंग स्वाहा. ये this R and R is getting स्वाहा. AO क्या हो जाएगा बेटा फिर? AO will be what? AO will be PI, AI, CI, TO divided by PO, CO, TI. अब देख लो, सारा डेटा पता है ना. PI आपको पता है, यस 300 किलो पास्कल. AI आपको पता है, यस AI is 80 centimeter square. CI is known, yes 10 meter per second. TO is known, yes 484 Kelvin. PO is known, yes 100 kilopascal. CO is known, yes 180 meter per second. TI is known, yes 500 Kelvin. फटाफट से बताओ रे बाबा. आपसे पढ़ने के बाद सब क्वेश्चन चंपू ही लग रहे हैं रे बाबा. 12 आ रहे तो केक वॉक है रे बाबा नेगी सोल्जर्स के लिए. ये डिफिकल्ट होगा, ये डिफिकल्ट होगा औरों के लिए. जितने भी नेगी सोल्जर्स हैं जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, मैंने एक एक चीज बताई है. मैंने एक एक चीज बताई है. नोजल से बस वही 4 वैरायटी के क्वेश्चन आने वाले हैं जो मैंने आपको बताया था. या तो आपसे सीओ पूछेगा, टीओ पूछेगा, रो ओ पूछेगा या एओ पूछेगा. सब तो बता दिया था रे बाबा खोलकर. तो अब आपके लिए कुछ बचा ही नहीं. सब आपको पता है किस टाइप का क्वेश्चन आना है, तो कुछ बचा ही नहीं. नेगी सोल्जर्स के लिए तो ये बहुत ईजी है रे बाबा. और अगर ये क्वेश्चन आपने बना लिया है तो हो जाए एक दिलों की बौछार कि पता चले आप लोगों का कितना प्यार मिल रहा है चैट बॉक्स में. फटाफट फटाफट ताड़ा ताड़ी रे बाबा. चलो किसी को डाउट है तो पूछ लो. आंसर आ रहा है डी डली. यस यस अमित छा गए घर. 12.9 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात. आंसर इज डी डली. चले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. बेटा बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे हर्ट्ज के सिंबल डालने में. जितने हर्ट्ज के सिंबल डालोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा रे बाबा. जितने हर्ट्ज के सिंबल डालोगे उतना समझ में आएगा रे बाबा. अब सब डालेंगे. अब सब शैम्पू लग गए टाइप करने में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ माय गॉड, गेट 2018 मैकेनिकल का क्वेश्चन है रे बाबा. इसे तो फोड़ने वाले हम लोग. बेटा मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन तो एकदम रामबाण रखे, मतलब आपको मजा आ जाएगा. वो 2 क्वेश्चन करके तो आपको मजा आ जाएगा. स्टीम फ्लोज थ्रू अ नोजल. ये है नोजल. Steam flows through a nozzle at a mass flow rate of m dot 0.1 kg per second. But a mass flow rate of the nozzle is given mass flow rate through the nozzle is given 0.1 kg per second with a heat loss of 5 kilowatt. Okay, heat is getting lost
एंड द रेट इज 5 किलोवाट। सही है, क्यू डॉट दे दिया बेटा -5 किलोवाट बिकॉज इट इज द हीट लॉस ना। द एंथैल्पीज एट द इनलेट एंड एग्जिट आर small hi is given, small ho is given respectively. Small hi is how much? 2500 kilojoule per kg and small ho is how much? 2350 kilojoule per kg respectively. Assuming negligible velocity at the inlet, ci is almost zero. The velocity C2 CO बेसिकली है ना, इनका C2 हमारा CO है। द वेलोसिटी CO ऑफ द स्टीम इन मीटर पर सेकंड एट द नोजल एग्जिट इज, बेटा CO पूछा है, HI इज गिवन, CI इज गिवन, M डॉट इज गिवन, Q डॉट इज गिवन, HO इज गिवन, ही इज आस्किंग। अब देखो यहां पर गर्लफ्रेंड धोखा दे देगी रे बाबा। जिन लोगों ने ये कर दिया गलती से भी, उनकी कहानी तो स्वाहा हो गई। हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस HO माइनस HI इज इक्वल टू 0। स्वाहा स्वाहा। कैन यू टेल मी व्हाई स्वाहा बेटा? उनकी कहानी क्यों खत्म हो जाएगी? जिन लोगों ने ये फार्मूला लगाया उनकी कहानी क्यों खत्म हो जाएगी? व्हाट इज द कंडीशन फॉर अप्लाइंग दिस फार्मूला? डेल्टा स्मॉल ke प्लस डेल्टा स्मॉल h इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द कंडीशन फॉर अप्लाइंग दिस फार्मूला? डेल्टा ke प्लस डेल्टा स्मॉल h इज इक्वल टू 0। यू आर हैविंग वेल इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल। हॉरिजॉन्टल नोजल है जनाब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वेल इंसुलेटेड कहां है? Q डॉट इज गिवन -5 किलोवाट। हाँ, it is not well insulated. It is not well insulated. That's why you should not apply. Yes, yes. अरे छा गए गौरव। अगर आप इस बात को समझ गए ना, I'm telling you, I'm very happy. If you are able to understand why we should not use this formula, I'm very, 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 very happy because यही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं ये फार्मूला क्यों नहीं लगा रहा हूं। यहीं पर तो कंफ्यूजन होता है, यहीं पर तो आपको लगता है कि थर्मोडायनामिक्स बहुत डिफिकल्ट है। Here you feel thermodynamics is very difficult because you have done so many questions on this formula and suddenly your sir is saying don't use this formula. So if you are able to understand why we should not use this formula, salute है रे बाबा। crystal clear। बहुत बढ़िया। तो अब किसके पास जाएं? मदर इक्वेशन के पास चलो, मदर के पास चलो रे बाबा। what mother is saying? मदर इक्वेशन फॉर नोजल Q डॉट W डॉट CV शून्य, डेल्टा KE डॉट प्लस डेल्टा PE डॉट प्लस डेल्टा H डॉट। अरे ये तो कोई अंधा भी बता देगा। आई एम हैविंग द हॉरिजॉन्टल नोजल, तो इसकी कहानी तो यहीं खत्म हो गई रे बाबा डेल्टा P डॉट की। सो व्हाट आई एम गेटिंग, Q डॉट इज इक्वल टू हाफ M डॉट CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस M डॉट स्मॉल HO माइनस स्मॉल HI। निकालना क्या है रे बाबा? निकालना है CO। तो देखो यार, ये तो बहुत इजी है। Q डॉट इज इक्वल टू व्हाट? M डॉट इन ब्रैकेट हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस HO माइनस HI। तो यार देखो यहां से क्या रहा है? हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? Q डॉट बाय M डॉट माइनस HO माइनस HI। देखो यहां से क्या रहा है? CO स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? CI स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Q डॉट बाय M डॉट माइनस HO माइनस HI। बस अब वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। रिमेंबर यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन जूल पर केजी। चलो फटाफट से बताओ कितना आंसर। अरे काफी लोगों ने कर भी दिया रे बाबा। सो मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फटाफट से बताओ बेटा कितना आ रहा है आंसर। I want everyone to solve. yes. बहुत बढ़िया 447.2। ओहो जतिन छा गए गुरु। 447.213 is a very correct answer। 447.213। अरे छा गए गुरु। कच्चा चबा गए रे बाबा आप लोग तो इस क्वेश्चन को। बेटा याद रखना, एक गलती आप लोग करने वाले हो, Q डॉट की वैल्यू अगर ढंग से नहीं रखोगे तो क्वेश्चन स्वाहा हो जाएगा। मेक श्योर यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q डॉट इन प्रॉपर साइन। Q डॉट आपका माइनस में आना है रे बाबा। तो देखो CO स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे इस बेचारे को हम लोग तब से यूं ही लिख रहे थे क्या? ये तो शून्य है, पहली हटा दे रे बाबा। 2 Q
Q dot is how much? -5. Look at here, 5 kilowatt. तो कन्वर्ट कर दिया, -5 into 10 to power 3 watt. M dot is how much? 0.1 kg per second माइनस HO कितना है रे बाबा? 2350 किलो जूल पर केजी माइनस 2500, करेक्ट? किलो जूल पर केजी, आई एम कन्वर्टिंग इनटू जूल पर केजी इनटू 10 टू पावर 3. अब बेटा इसको सॉल्व कर लेना. CO विल बी कमिंग 447.21 कितना बेटा? हाँ 21. ओके, ये आ गया सबका. कंफर्म करो यार, कंफर्म करो. कितने ही तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए अलग अलग वैरायटी के. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बेटा किसी को डाउट है तो पूछ लो. यहां पर आप दो तरीके की गलती कर सकते हैं. हेयर यू विल बी कमिटिंग 2 मिस्टेक्स. फर्स्ट मिस्टेक इज यू विल ट्राई टू अप्लाई दिस फार्मूला. First mistake is you will try to apply this formula. Please don't use this formula because you are not having insulated nozzle. Second thing, you will not put Q dot -5 kilowatt. ये माइनस में नहीं लिखोगे. अगर माइनस में नहीं लिखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा. बन रहे हैं क्वेश्चन. 0.1 से डिवाइड क्यों किया? ये m डॉट आ गया ना बेटा. अरे ये m डॉट है ना. मास फ्लो रेट इज गिवन 0.1 kg पर सेकेंड ना. मास फ्लो रेट इज गिवन 0.1 kg पर सेकेंड. चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे. Shall we go for the next question? वट्ठा बैठे, वट्ठा बैठे. बहुत बढ़िया. तो मैं डाल देता हूं आंसर, है ना. 447.21. रेंज बता दूं आपको, इसकी रेंज क्या थी ऑफिशियल आंसर की में? 445 to 450. Whoever gave the answer in this limit was correct. चलो. हो what a beautiful. गर्लफ्रेंड इक्वेशन मुश्किल टाइम पे हमेशा धोखा देगी. क्या ही तो बात है रे बाबा. सही है, सही है. मदर ही साथ रहती है. चलो 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 चलो. The temperature and pressure of air in a large reservoir are 400 Kelvin and 3 bar. Beta reservoir is given. The moment in the question they are giving you the reservoir, you know reservoir will be having such a huge area that the velocity of the fluid flow will be negligible and you can assume CI is 0. तो बेटा आपको TI दिया है, TI is given, PI is given. TI is given, PI is given. The conversing diverging nozzle of exit area AO is given. How much? 0.005 meter square is fitted to the wall of the reservoir as shown in the figure. Fine. This is the wall of the reservoir. ठीक है. The static pressure of air at the exit section for the isentropic flow. Isentropic flow is given रे बाबा. T P power 1 minus gamma upon gamma you can apply. Through the nozzle is 50 kilopascal. So beta PO is given 50 kilopascal. The characteristic gas constant and ratio of specific heat of air are 0.287 kilojoule per kg per Kelvin and 1.4 respectively. तो कैपिटल R दिया है, गामा दिया है. पूछ क्या रहा है? डेंसिटी ऑफ एयर इन kg per meter cube at the nozzle exit. बताया था रो ओ कैसे निकालते हैं. You know how to find रो ओ. How to find rho O? PO is equal to rho O R TO. So rho O will be what? PO upon RTO. फटाफट से निकालो रे बाबा, फटाफट से निकालो रे बाबा, फटाफट से निकालो. इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या रहा है. देखो आपको हिंट दे देता हूं. I will be giving you the hint. I will be giving you the hint. Look at here my friends. यहां पे जगह है तो लिख रहा हूं आप लोगों के लिए. Rho O he is asking. Rho O will be PO upon RTO. PO is known. PO is given in the question. How much is PO? 50 kilopascal. R is given 0.287. You can convert into joule per kg per Kelvin. No problem. ये TO कैसे निकलेगा रे बाबा? ये TO कैसे निकलेगा? हाँ, अरे it is given ना in the question. देखो मैं आपको हाईलाइट करता हूं. It is given in the question ना. What is given in the question? Isentropic flow. The moment they have given you the isentropic flow, कहानी ही खत्म हो गई रे बाबा.
परफेक्ट गैस ऑलरेडी एयर है, आइसेंट्रोपिक फ्लो दे दिया, टी पी पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस टी आई पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू टीओ पीओ पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा. यू कैन फाइंड टीओ फ्रॉम हियर. जल्दी से टीओ बताओ कितना आ रहा है. टीओ कितना आएगा बेटा? पी आई बाय पीओ होल पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा. पी आई इज हाउ मच? 3 बार. 3 बार मीन्स 300 किलो पास्कल. पी आई बाय पीओ 50 किलो पास्कल. 1 माइनस 1.4 1 माइनस गामा अपॉन गामा इनटू टीआई. टीआई इज हाउ मच? 400 केल्विन. तो बताओ बेटा फटाफट से टीओ कितना रहा है. मुझे पहले टीओ बताओ, उसके बाद रो ओ निकालना. टीओ बताओ फटाफट से. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीओ यू पीपल आर गेटिंग? अरे वाह, छा गए गुरु. काजल एक्सीलेंट है रे बाबा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. आयुष छा गए गुरु, एक्सीलेंट है रे. आई एम वेरी हैप्पी. मतलब ये क्वेश्चन आप जिस तरीके से फोड़ रहे हो ना, गेट 2011 मैकेनिकल, लोग डरते हैं इस क्वेश्चन को आज भी सॉल्व करते हैं, और आप तो इसके चीथड़े उड़ा दिए रे बाबा. 239 हो 239.734 केल्विन. अब तो क्या ही बचा रहे बाबा इस क्वेश्चन में. जैसे आपने टीओ निकाल लिया, द मोमेंट यू आर फाइंडिंग द टीओ, जैसे ही आप टीओ निकालते हो, अब तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा. अब तो कुछ बचा ही नहीं रहे बाबा. रो ओ इज इक्वल टू व्हाट? पीओ. पीओ इज हाउ मच? 50 किलो पास्कल. 50 किलो पास्कल. चलो किलो पास्कल में ही लिख लेता हूं. व्हाट इज आर? 0.287 इंटू टीओ. टीओ इज हाउ मच? 239.734. यही है, यही है. फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी यू पीपल आर गेटिंग? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. रो ओ इज 0.727 kg per meter cube. ओ माई गॉड, बहुत बढ़िया. आंसर इज सी चेन्नई. आंसर इज सी चेन्नई. बन रहा है क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से बन रहा है क्वेश्चन. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. पिंको छा गए गुरु. अलाउद्दीन वेरी गुड है रे बाबा, अनडिस्प्यूटेड वेरी गुड. विश्वजीत एक्सीलेंट रे बाबा, एक्सीलेंट रे बाबा. आई होप ईच एंड एवरीवन इज एबल टू सॉल्व. गोवाला वेरी गुड बेटा. नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली. अगले प्रॉब्लम में जा रहा हूं. The mass flow rate of air through the nozzle is, he is asking the mass flow rate of the air through the nozzle. How to find mass flow rate? मैंने आपको बताया हुआ है. Whether you use rho I, AI, CI or you use rho O, AO, CO, you will be getting the mass flow rate because m dot I is equal to m dot O is equal to m dot. तो rho O, AO, CO का प्रोडक्ट करो और बताओ कितना आ रहा है. What is the mass flow rate you people are getting? अरे ये तो बहुत इजी है. अरे चंपा, अरे चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपू. m dot I is equal to m dot O is equal to m dot. So let me say m dot O. I am finding rho O, AO, CO. क्या क्या पता है? rho O पता है, अभी तो निकाला था 0.727 kg per meter cube. AO पता है, AO is given in the question 0.005 मीटर स्क्वायर. ये CO नहीं पता रे बाबा, CO नहीं पता रे बाबा. निकालो CO फटाफट से. हाउ टू फाइंड CO? यूज द नोजल इक्वेशन. यूज द नोजल इक्वेशन. फटाफट से, फटाफट से. हाफ इन ब्रैकेट CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस CP इन ब्रैकेट TO माइनस TI, और फटाफट से निकाल डालो रे बाबा. TO आपको पता है 239.734 केल्विन. TI यू नो 400 केल्विन. फटाफट से निकाल लो, फटाफट से निकाल लो. राहुल फटाफट से करो बेटा. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. दिस इज वेरी 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 नाइस क्वेश्चन. आपको CO निकालना पड़ेगा बेटा. यू नीड टू फाइंड CO बिकॉज in the formula I am having rho O, AO, CO. Rho O just now I have calculated 0.727 kg per meter cube. AO is given in the question 0.005 meter square. CO I need to find half CO square minus CI square. CI tends to 0 because I am having large reservoir, plus CP is given in the question. CP is not given, but you know it is air, and R is given, gamma is given, same whatever I have given you in the question in the classes. So 1.005 kilojoule per kg per Kelvin you will get, or you can say you will be getting 1005 joule per kg per Kelvin. CP is known in bracket TO minus TI 239.734
माइनस 400। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, मैं आप लोग के लिए लिखता हूं हाफ इन ब्रैकेट CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस CP इन ब्रैकेट TO माइनस TI इज इक्वल टू शून्य। हाफ CO square I need to find, CI is swaha because I am having very large reservoir, right? Plus 1005 TO निकाला था हम लोगों ने 239.734 minus TI 400 Kelvin is equal to 0. You just find CO from here. What is the value of CO you people are getting? बेटा मुझे एक बार CO की वैल्यू बता दो. What is the value of CO you people are getting? CO की वैल्यू बता दो बेटा फटाफट से चैट बॉक्स में. प्लीज हेल्प मी विद द वैल्यू ऑफ CO सो दैट आई कैन प्रोसीड द प्रॉब्लम. फटाफट से बता देंगे बेटा CO की वैल्यू कितनी आ रही है. CO की वैल्यू बहुत बढ़िया 2.06 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. CO बता दो. व्हाट इज द वेलोसिटी एट द आउटलेट यू पीपल आर गेटिंग? 567 अप्रोक्सीमेटली. ओके ठीक है 566 थोड़ा सा अलग अलग आप सब लोग बता रहे हो बट ठीक है मैं देख लेता हूं मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं. अप्रोक्सीमेटली 567 ठीक है. ओके CO इज अप्रोक्सीमेटली 567 मीटर पर सेकेंड. थोड़ा पॉइंट में ऊपर नीचे देख लेना. तो यहां से m डॉट आपका आने वाला है 2.06 kg पर सेकेंड. बात क्लियर है? बात क्लियर. अब मेरे पास ना दो क्वेश्चन हैं ब्रह्मास्त्र वाले. अगर उनको बना लिया आपने तो मान जाऊंगा मैं. अब मेरे पास दो क्वेश्चन है. नाउ आई एम हैविंग टू क्वेश्चंस विच आर वेरी 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 डिफिकल्ट. दो क्वेश्चन तो बहुत ही ब्रह्मास्त्र वाले हैं. अगर आपने उन क्वेश्चन को बना लिया तो मजा आ जाएगा. सो आर यू रेडी फॉर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स? अब आप चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के लिए रेडी हैं? यस 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 जतिन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. आर यू रेडी फॉर द चैलेंजिंग प्रॉब्लम? जल्दी से बताओ बेटा. टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में. हार्ट के सिंबल से पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो अगर आप लोग रेडी हैं. इफ यू पीपल आर रेडी फॉर द चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स तो फटाफट से टाइप कर दो चैट बॉक्स में. बहुत बढ़िया बहुत. अरे झमाझम रेडी है रे बाबा. झमाझम रेडी है रे बाबा. कम ऑन एवरीवन कम ऑन एवरीवन. आर यू रेडी? रेडी है रेडी है रेडी है. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत रेडी है रे बाबा. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ रे बाबा. नाउ बिफोर वी गो टू द चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स एक बार मैं आपको बता देता हूं कल के बारे में. टुमारो वी आर गोइंग टू मीट एट 7 PM. I will be having a surprise launch for you people. झमाझम सरप्राइज है रे बाबा. जितने मेरे YouTube के कहीं के भी नेगी सोल्जर्स हैं, YouTube के स्पेशल के प्लस के जहां के भी है रे बाबा नेगी सोल्जर्स हैं, तो कल आने वाला है मजा 7 PM पर. अरे मजा 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 मजा. दिस इज ज्ञान गंगा. ये है बेहतरीन ज्ञान गंगा. बेटा ये ज्ञान बहुत लोग पूछते हैं सर व्हाट इज दिस ज्ञान गंगा. बेटा whatever the free classes I have taken everything is arranged in a proper way systematic way. तो आप इस ज्ञान गंगा को एक्सेस करो. अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हैं और आप चाहते कि आपकी फ्री में परफेक्ट वे में तैयारी हो तो यह है ज्ञान गंगा. सर हाउ टू रीच ज्ञान गंगा? बेटा TINY टाइनी URL.com/NEGI नेगी 10 नेगी 10 नेगी 10 नेगी 10 CODE. बेटा एवरीथिंग इज अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे. नेम ऑफ द चैप्टर, लेक्चर नंबरिंग, whatever the lecture I have taken, video class link, PDF, everything is here. तो एक बार जाके देखो आपको मजा आ जाएगा है ना. चलो ओहो हो. नाउ बेटा क्या सरप्राइज है मैं बता रहा हूं. सरप्राइज ऐसा है कि आपकी प्रिपरेशन लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है. जो भी मेरे नेगी सोल्जर्स हैं उनकी अब प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे जाने वाली है, एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है. आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा. कल आना, आपको मजा आ जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 enters an adiabatic rigid nozzle steadily at 1 megapascal and 500 degree Celsius. PI is given 1 megapascal, TI is given 500 degree Celsius with a mass flow rate of 1.5 kg per second. M dot is given
m dot is given 1.5 kg per second, m dot I or m dot O, whatever you want to say. The inlet area of the nozzle is a 40 centimeter square. AI is given 40 centimeter square, and the exit velocity is 10 times of that at the inlet. CO is the 10 times of CI. If CO2 can be considered as an ideal gas, with the gas constant capital R is given 0.19 kilojoule per kg per Kelvin, and the ratio of specific heats gamma is given 1.29. The exit temperature up to 1 decimal place is, इसको लगाओ रे बाबा, ये वाला क्वेश्चन कर डालो रे बाबा, ये वाला क्वेश्चन कर डालो रे बाबा, ये वाला क्वेश्चन कर डालो रे बाबा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे एग्जिट टेम्परेचर मांग रहा है, आपसे एग्जिट टेम्परेचर मांग रहा है। इस क्वेश्चन को कर दिया तो मजा आ जाएगा बेटा। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप कर सकते हो, सब कुछ आपको पता है। जो जो डेटा दिया है मैं लिखता हूं। एडियाबैटिक नोजल इज गिवन, हॉरिजॉन्टल नोजल यू कैन अस्यूम PI is given 1 megapascal, PI is given 1 megapascal, TI is given 500 degree Celsius. Mass flow rate is given 1.5 kg per second. The inlet area of the nozzle is 40 centimeter square. AI is given 40 centimeter square, right? Exit velocity is the 10 times of inlet velocity. CO is given 10 times of CI. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। If CO2 can be considered as an ideal gas, capital R is given 0.19 kilojoule. देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रे बाबा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। गामा इज गिवन हाउ मच? 1.29। पूछा क्या है? टीओ पूछा है। निकालो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखो, इतना तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। 100% I will be using this equation because already adiabatic is given and horizontal I am assuming because nothing is mentioned about the potential head. So half CO square minus CI square plus CP TO minus TI is equal to शून्य। TI is known, बहुत बढ़िया। CP R gamma upon gamma minus 1, I will be able to find CP, no problem. CO and CI is unknown. If I can find CI, 10 times of CI is CO. तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। So now the only thing which I need to find is somehow find this CI. अरे अगर मुझे CI पता चल जाए मैं निकाल लूंगा half. If I know CI 10 times of CI is CO, है ना? So CI पता चल जाए, ये वाली टर्म पता चल जाएगी, हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर। CP R गामा अपॉन गामा माइनस 1। TI is already given 500 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 773 केल्विन। तो TO निकल जाएगा। अब ये CI कैसे निकलेगा? CI बताओ बेटा। यार मास फ्लो रेट इज गिवन ना, mass flow rate is what? Can I say mass flow rate is rho I AI CI? Or can I say mass flow rate is equal to rho I AI CI? Can I find CI from here? Mass flow rate divided by rho I AI. Mass flow rate divided by rho I AI. रो आई को कैसे लिख सकते हैं बेटा? रो आई कैन फाइंड ना। अरे P इज इक्वल टू रो आर टी, P इज इक्वल टू रो आर टी। सो कैन आई से CI इज इक्वल टू m डॉट P बाय आर टी, PI बाय आर टी आई AI। ये कंफर्म करो। अब तो निकल जाएगा रे बाबा CI, बहुत इजीली निकल जाएगा। मास फ्लो रेट इज गिवन 1.5 kg पर सेकेंड। R इज गिवन 0.19 किलोजूल में ले रहा हूं, किलोजूल पर केजी पर केल्विन। TI इज हाउ मच? 500 मीन्स 773 केल्विन डिवाइडेड बाय PI, आई नीड टू टेक इन किलो पास्कल, 1000 किलो पास्कल।
AI is how much? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 40 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। जल्दी से बताओ बेटा CI की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके। आई एम इंटरेस्टेड इन CI, मुझे फटाफट से बता दो CI की वैल्यू कितनी आ रही है। एक बार वो बता दोगे तो फिर आंसर हो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत, अरे राहुल छा गए गुरु बेटा, बहुत, अरे वाह 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 वाह, मतलब मजा ही आ गया। अरे मजा मजा मजा, इसे कहते हैं फुल मजा, इसे कहते हैं फुल मजा, मतलब मजा ही आ गया यार। अगर आपने ये क्वेश्चन बना दिया, मतलब मैं कभी सोच नहीं सकता, बिकॉज व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन आई फेल्ट, because this is the question of my paper only where I got all India rank 1, and yes I felt this question is little tricky because it involves all the formulas। यहां पर P is equal to rho RT का भी यूज हो रहा है, mass flow rate is equal to rho AC का भी यूज हो रहा है, and of course you are using the Gelfand equation of nozzle also। तो तीन इक्वेशंस यूज हो रही हैं, तो आई फेल्ट दिस क्वेश्चन कैन बी लिटिल ट्रिकी, लेकिन आपने तो बना दिया रे बाबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस 55.076 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। अरे मजा 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस अगर CI है 55.076 मीटर पर सेकंड, तो CO कितना हो जाएगा? 550.76 मीटर पर सेकंड। यस 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 यस, एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। टीओ की वैल्यू बता दो, अब तो निकल जाएगा। टीओ बताओ, टीओ कितना आ रहा है बेटा? टीओ कितना आ रहा है? CI CO तो निकल गया, अब यहां रख दो, बस यहां रख दो, अब तो कुछ बचा ही नहीं। या तो चाहे तो आप एक काम और कर सकते थे, अरे देखो ना, हाफ CO is 10 times of CI ना, so CO square will be 100 times of CI square, so half 99 CI square। CI is how much? 55.076, बहुत बढ़िया, प्लस CP will be how much? R gamma upon gamma minus 1, so 190 into 1.29 divided by gamma minus 1, ये हो गया आपका CP। TO माइनस TI, चंपो TO तो निकालना है रे बाबा। TI इज हाउ मच? 773 इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ बेटा TO कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TO यू पीपल आर गेटिंग? स्क्वायर छूट गया, चंपो स्क्वायर छूट गया। यस 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 धर्मराज, थैंक यू सो मच बेटा। चलो फटाफट से बताओ TO कितना रहे? TO 595 इज एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। आयुष छा गए गुरु, 595.34 ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, 595 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा। यही आ रहा है सबका, यही आ रहा है सबका, 595.3 595.4 एब्सोल्युटली करेक्ट। सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट, यार देखो ये अब आपको लग रहा है ना क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आपको लग रहा है क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन किसी और को पकड़ा देना, सांसें फूल जाएंगी करने में, इतना इजी नहीं है आपको अब लग, बिकॉज आपको प्रैक्टिस हो गई ना बाबा, आपको मैंने सब कुछ तो बता दिया, आपको मैंने सब कुछ तो बता दिया क्या क्या फार्मूले यूज हो सकते हैं। P इज इक्वल टू रो RT यूज हो सकता है, मास फ्लो रेट इक्वल टू रो AC यूज हो सकता है, ये है। किसी और को दे दो वो कंफ्यूज ही हो जाएगा, डेटा देखकर ही सांसें फूल जाएंगी, अरे बाप रे बाप इतना सारा डेटा है। अरे ये खड़ूस प्रोफेसर का काम है, ये खड़ूस प्रोफेसर का काम है। तो आंसर रख देते हैं 595.3, ये तो खड़ूस प्रोफेसर का काम है। और मैं यू नो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ अगर आप लोग बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मतलब उससे ज्यादा खुशी मुझे क्या हो सकती है कि मेरे स्टूडेंट को लग रहा है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, वाठा बेटे। रेंज बता देता हूं, रेंज बता देता हूं, 590 to 600। द रेंज गिवन इन ऑफिशियल आंसर की इज 590 to 600, जिसका भी इसमें आ रहा है 590 से 600 के बीच में एकदम सही आंसर है रे बाबा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वट्ठा ब्योठे, वट्ठा ब्योठे। एक और खतरनाक वाला क्वेश्चन ले लूं, एक और खतरनाक वाला क्वेश्चन ले लूं, एक और खतरनाक वाला क्वेश्चन ले लूं।
कुछ भी दे दे रे बाबा, आपसे पढ़े तो बन ही जाएगा, ये हुई ना बात। रे shall we go for one more question? Are you ready for one more question? Are you ready for one more question? एक और बेहतरीन क्वेश्चन हो जाए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन हो जाए। यस यस यस, चलो 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 रे बाबा। यार ये मुझे फटाफट से कंफर्म करो, एक क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और कर ले। यस 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 यस, फटाफट से बेटा, डोंट वरी। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं, दिस पीडीएफ आई एम गोइंग टू शेयर इन नेगी 10 टेलीग्राम चैनल, आप वहां से ले लेना, सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे पूरे, है ना। चलो, अरे यार ये तो इसी साल का क्वेश्चन है, गेट 2021 एक्सी, इसी साल का क्वेश्चन है रे बाबा। चलो देखते हैं कैसे आप लोग करोगे इसको। एयर हैविंग अ मास फ्लो रेट ऑफ 2 kg per second, मास फ्लो रेट इज गिवन बेटा, एंटर्स अ डिफ्यूजर। अब ये डिफ्यूजर देखकर घबरा मत जाना, मैंने क्या बोला था, डिफ्यूजर इज अपोजिट ऑफ व्हाट, डिफ्यूजर इज अपोजिट ऑफ व्हाट, नोजल। व्हाटएवर द इक्वेशन इज वैलिड फॉर नोजल, दैट इज वैलिड फॉर डिफ्यूजर आल्सो। एट 100 kilopascal and 30 degree Celsius, बेटा Pi is given, Ti is given. With a velocity of 200 meter per second, Ci is given 200 meter per second. Exit area of the diffuser is 400 centimeter square. AO is given 400 centimeter square. While the exit temperature of the air is 45 degrees Celsius. TO is given. The rate of heat loss from the diffuser to surrounding is 8 kJ, kilojoule per second. यानी कि Q डॉट दे दिया -8 किलोवाट। द प्रेशर एट द डिफ्यूजर एग्जिट इज, पीओ पूछ रहा है बेटा, ही इज आस्किंग पीओ। अब करो इस क्वेश्चन को, कैपिटल आर इज गिवन, सीपी इज गिवन, कैसे करोगे? डेटा लिख दूं आप लोगों के लिए, डेटा लिख देता हूं, थोड़ा सा सोच में आएगा आपके लिए। एम डॉट इज व्हाट, 2 kg per second, राइट। Pi इज हाउ मच, Pi कितना है रे बाबा, Pi है 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Ti इज हाउ मच, 30 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन 303 केल्विन, ओके। एंड Ci इज गिवन, वेलोसिटी एट द इनलेट ऑफ डिफ्यूजर इज गिवन 200 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Exit area of the diffuser, AO is given 400 centimeter square, बहुत बढ़िया। And TO is given 45 degree Celsius, 45 plus 273, 313 Kelvin, सही है ना, 313 Kelvin, 318 ना, 318 Kelvin, राइट। Q डॉट इज गिवन, माइनस लॉस है ना, -8 किलोवाट, एंड व्हाट ही इज आस्किंग, PO, यस। बेटा ये तो सबको समझ में आ गया होगा, PO पूछ रहा है तो PO कैसे निकालोगे, फटाफट से बताओ, पीओ कैसे निकालने वाले हो, फटाफट से बताओ, तो बेहतरीन क्वेश्चन है। अरे एक ही तो इक्वेशन है पीओ की, जो मैंने आपको बताई है, पीओ इज इक्वल टू व्हाट, रो ओ आर टीओ। अब ये रो ओ क्या लिख सकते हो आप, अरे एम डॉट इज इक्वल टू व्हाट, रो ए सी ना, एम डॉट इज इक्वल टू व्हाट, रो ए सी। सो दिस कैन बी रिटन एज एम डॉट डिवाइडेड बाय रो ना, ए सी, रो इज इक्वल टू व्हाट, अरे चंपा लुक एट हियर, चंपू कंफ्यूज हो रहा है रे बाबा, एम डॉट इज इक्वल टू रो ओ ए ओ सी ओ। सो व्हाट इज रो ओ, एम डॉट बाय ए ओ सी ओ, एम डॉट बाय ए ओ सी ओ, आर टी ओ। अब पीओ निकालने के लिए एम डॉट चाहिए, एम डॉट गिवन है। फॉर फाइंडिंग पीओ आई नीड एम डॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ए ओ गिवन इन द क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आर गिवन इन द क्वेश्चन, क्या ही तो बात है रे बाबा।
सीओ नहीं पता है, टीओ पता, यानी कि बस सीओ निकालना है बेटा, यानी कि मुझे सीओ निकालना है, सीओ निकालना है ना। एक बार मुझे सीओ पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये सीओ कैसे निकालेंगे बेटा? हाउ टू फाइंड सीओ? गो टू द बेसिक इक्वेशन, हाफ सीओ स्क्वायर माइनस सी आई स्क्वायर प्लस सी पी टीओ माइनस टी आई इज इक्वल टू शून्य। बेटा ध्यान से देखना, सी आई इज नोन, CP is known, TO is known, TI is known. 100% you can find CO from here. बताओ बेटा फटाफट से यहां से CO कितना आ रहा है? What is the value of CO? रख दूं क्या वैल्यूज जिसको समझ में नहीं आया? हाफ CO I want to find. CI is how much? 200 minus 200 square. CP is given 1005. TO is how much बेटा? TO is a 318 Kelvin or you can say 45 degree Celsius. TI is how much? 30 degree Celsius ना? So 303. CO की वैल्यू बता दो फटाफट से। What is the value of CO you people are getting? उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। CO की वैल्यू 99.32। हाँ यस यस, बस मैं यही देख रहा था। यस यस, बस हो गए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। बस मैं यही देखना चाह रहा था बेटा। आई वॉन्ट टू सी कि कितने लोग इस चीज में फंसते हैं। सल्यूट है रे बाबा, सल्यूट है जो लोग नहीं फंसे, सल्यूट है रे बाबा। जिसने इस इक्वेशन को लगा दिया, खत्म है रे बाबा कहानी। जिसने भी इस इक्वेशन को लगा दिया रे बाबा, खत्म है कहानी। सल्यूट है रे बाबा। आई एम टेलिंग यू, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए रे बाबा। सुभानी, प्रगति, राहुल, अनडिस्प्यूटेड, शरण कुमार, छा गए गुरु। बहुत बढ़िया काजल, बहुत बढ़िया ऋषभ बेटा, एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा। सो देखो यहां से सीओ कितना रहा है, एक बार मुझे इसके थ्रू बताओ। इसको सॉल्व करके सीओ कितना है आपका? इसको सॉल्व करके सीओ कितना है आपका? जो भी आ रहा है वो गलत है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। आपको जाना पड़ेगा बेसिक। यू नीड टू गो टू द बेसिक इक्वेशन। व्हाट इज दैट? क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल्टा के ई डॉट प्लस डेल्टा पीई डॉट प्लस डेल्टा एच डॉट। बस 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 बस, अब आया ना मजा, अब आया ना मजा। नाउ यू आर माई नेगी सोल्जर्स। ये है बेटा स्टैंप। जब आपको ये चीजें समझ में आती है ना कि ये फार्मूला क्यों सही है, वो फार्मूला क्यों गलत है, तब होते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, तब आप कहलाते हैं नेगी सोल्जर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ ये बात क्लियर है? 43.01 विल कम बेटा, 43.01 will come, 43.01 will come, है ना। यहां से सॉल्व कर लो। Q डॉट इज हाउ मच? -8 किलोवाट ना। M डॉट इज हाउ मच? 2 kg per second। हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर CP TO माइनस TI। यार ये देख लो ना, 45 माइनस 30 15। अब बताओ यहां से CO कितना रहा है? मेरे पास 43.01 है बेटा। आई एम हैविंग 43.01, आई एम हैविंग 43.01 मीटर पर सेकंड। कितने लोगों का यही आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस? प्रशांत ले लो बेटा, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है रिवीजन कोर्सेज, है ना। यहां तक क्लियर है? प्रशांत मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। यहां तक क्लियर है? अब बताओ कितना आ रहा है पीओ? पीओ इज इक्वल टू व्हाट आर यू गेटिंग? एम डॉट डिवाइडेड बाय
AOCO RTO. So PO is equal to m dot 2. AO is how much beta? 400 centimeter square, 10 to power minus 4. CO 43.01. आपको किस में निकालना? किलो पास्कल में। तो ठीक है, आर की वैल्यू किलो जूल पर केजी पर केल्विन में भी ले लोगे तो चलेगा। चलो नहीं है तो वैसे ही ले लो 287। टीओ इज हाउ मच? 318। तो ये पास्कल में आएगा, इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लेना। सो व्हाट इज द पीओ यू पीपल आर गेटिंग बेटा? 106.09। 106.09। 106 106 जिसका भी आ रहा है सही है। तो क्या हो रहा है प्रेशर का? प्रेशर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? प्रेशर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिफ्यूजर में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है फ्लूइड का कि डिक्रीज हो रहा है? देखो एट द इनलेट आई वाज हैविंग 100 किलो पास्कल, आउटलेट पर कितना आ गया? 106। यही तो मैंने आपको बताया था। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू ना। व्हाट हैपन जनरली इन डिफ्यूजर? द प्रेशर विल इंक्रीज, है ना? प्रेशर विल इंक्रीज। यस 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 यस। कितने लोगों को आज की क्लास में मजा आ गया? मतलब एक भयंकर वाला मजा आ गया। कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डाले रे बाबा, एक एक वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। आपको याद रखना बेटा, केवल 4 ही इक्वेशन है, केवल 4 ही इक्वेशन है जो नोजल के क्वेश्चंस में लगेंगी या डिफ्यूजर के क्वेश्चन में लगेगी। फर्स्ट इज क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल्टा के डॉट प्लस डेल्टा पी डॉट प्लस डेल्टा एस डॉट। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन विच वी विल बी यूजिंग व्हेनेवर क्यू डॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन. Second is, if we are having horizontal, well insulated horizontal nozzle, half in bracket cu square minus c square plus cp to minus ti और ho minus hi, जो भी लिखना चाहो. Third equation which we are going to use to find the density, p is equal to rho rt. जो फोर्थ इक्वेशन है वो मास फ्लो रेट वाली है, जहां पे एरिया, याद रखना जब भी क्वेश्चन में एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है तो मास फ्लो रेट वाली इक्वेशन तो लगेगी ही, m डॉट इज इक्वल टू रो ए सी. बस यही 4 इक्वेशन है, इनको याद रखना. कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में नोजल या डिफ्यूजर का, झमाझम उड़ा दोगे. 4 इक्वेशन, मदर इक्वेशन, गर्लफ्रेंड इक्वेशन, p इज इक्वल टू रो आर टी एंड m डॉट इज इक्वल टू रो ए सी. कंडीशन आपको पता है कब कब क्या क्या लगानी है. हाँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन में सब कुछ हो गया. मैंने वही बोला ना, लास्ट के 2 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे रखे थे कि आपको मजा आ जाए, है ना? ठीक है, तो ये वाली गलती मत करना. मजा